Hello and welcome to the live lecture. Welcome to Learning Ingenuity. My name is Toshendra and today we are going to study class 10 mathematics. Well, so in the previous class we were studying about triangles and we have yet to do some of the questions. So we have studied about basic proportionality theorem, which is also known as Thales theorem. We have seen what it proposes. So what Thales theorem proposes is it states that a line parallel to any side of a triangle will split the other two sides in equal ratios, right? So we have seen it, and the vice versa is also true. So if a line segment divides any two sides of a triangle, so in a specified ratio, and that ratio is equal, if they divide two lines, if any line divides two sides of a triangle proportionally, so that line would be parallel to the third line. So that is what the proportionality theorem, basic proportionality theorem states. Now we'll see some of the questions based on the same. So we'll start with the exercises given in our NCERT, the Gita of mathematics. Right? So we'll start with the NCERT exercises. Give me a moment, let me set it up for an appropriate size on your screen. Students, I believe you are able to hear my voice. You can, I suppose you can hear me all fine. Just provide me a confirmation if you can hear my voice and if you can see me. Alright, I suppose now you should be able to see this. Also, I would like to bring up this screen in front of you, so this will be easier for you now. Alright, that is it. Fine. Alright, so let's see the first question. Also, let me just zoom it in a bit, that you'll be able to see it clearly. Here we go. Alright, so the first question says, we're doing the third exercise of NCERT, and the first question says, state which pairs of triangles in a figure are similar. Write the similarity criteria used by you for answering the question, and also write the pairs of similar triangles in the symbolic form. Right? So we have two triangles given, and some of the measurements of the triangles are given. Over here we see the angle measure of these triangles have been given. Alright, so let's see what it says. See, in the first triangle, let me just give you an idea how to take these kind of questions. So this is the first triangle. Also, there's another triangle which is slightly bigger than this one. Here we go. ठीक, तो अब इसके अंदर दे रखा है एंगल्स जो है, देखिए ये एंगल जो है ये इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। ये एंगल जो है ये इनकी वैल्यूज भी दे रही है, इनकी वैल्यूज जो दे रही है ये है 80 डिग्रीज, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर दे रखा है ये 80 डिग्री है, ठीक है। ये एंगल दिया हुआ है 40 और ये वाला एंगल जो दे रखा है ये है 40, ठीक है। और ये एंगल दे रखा है 60,
सिमिलरली दिस एंगल इज ऑल्सो 60, राइट। और इनका नामकरण भी किए हुए हैं, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। Similarly over here this one is, this vertex is P, this is Q and this one is R. This is Q. Now when we compare both of these triangles, so let's compare triangle A, B and C, okay? And triangle पी क्यू आर, ठीक है। ये दो ट्राइंगल्स को हम कंपैरिजन करते हैं, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, राइट, गिवन है, ठीक है, लिख सकते हैं गिवन, ठीक है। आपको जो भी आप मान लीजिए कोई भी अप्रोच जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, so you need to mention on what basis, on what facts are you applying the approach, ठीक है। तो जो भी अप्रोच आपकी है उसमें आपको बताना ज़रूरी है स्टेप वाइज कि कौन से फैक्ट्स या क्या कौन सी थ्योरम है कि किस इक्वेशन से या कौन से किस फैक्ट से आप इस कंक्लूजन पे आ रहे हैं। सो राइट, तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी एंड इट्स अ फैक्ट बिकॉज इट्स गिवन इन द क्वेश्चन। एंगल B is equal to angle Q. This is also given, ठीक है। आपको पूरा लिखना पड़ेगा, प्लीज़ ये डबल इन्वर्टेड कॉमास नहीं यूज़ करें, राइट। सो आप लोग पूरा लिखें गिवन, ठीक है। और एंगल C is equal to एंगल R, राइट, दिस इज ऑल्सो गिवन, ठीक है। तो अब ये इस इंफॉर्मेशन से अब हमें याद आता है कि जो हमारी ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया था, ठीक है। सो बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ठीक है, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या होगा, देखिए ट्राइंगल ए बी और सी क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ट्राइंगल पी क्यू आर और ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होंगे। ध्यान रखिए जब भी आप इनको नेमिंग करेंगे, ठीक है, तो ध्यान रखें इनका कि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की पोजीशन जो है वो सेम आनी चाहिए। जैसे कि इसके अंदर बात कर रहे हैं तो जब हम ए बी सी लिख रहे हैं, जब हम मेंशन कर रहे हैं ए बी सी, तो उसके अंदर बी को हमने बीच में लिया है, ए को हमने स्टार्टिंग में लिया है और सी जो है वो लास्ट में लिया है। तो ये वर्टेक्स जो है हमने इस तरीके से पोजीशन किए हैं, ठीक है। तो सिमिलरली आपको कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस को और प्लेस करना है दूसरे ट्राइंगल के, ठीक है। तो अब ए का कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स क्या है, ए का कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है पी, ठीक है। तो आपको अगर ए आपने सिमिलैरिटी जब बता रहे हैं तो उस वक्त जब ए जो है आपने स्टार्टिंग में रखा है तो आपको दूसरे ट्राइंगल का उसका कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स को सेम पोजीशन देनी है। तो उसको जब आप नाम लिखेंगे तो उसको पी को स्टार्टिंग में रखना है। सिमिलरली जब आप फर्स्ट ट्राइंगल के अंदर मान लीजिए बी जो है उसको सेंटर में रख रहे हैं, जब आप उसका नाम लिख रहे हैं ए बी सी, हम बात कर रहे हैं नाम रखने की, तो नेमिंग कन्वेंशन की बात हो रही है। जब आप उसका नाम रख रहे हैं, बता रहे हैं कि ये ट्राइंगल जो है इस ट्राइंगल के इक्वल है या सिमिलर है, ठीक है, तो उसमें आपको कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस को और साथ रखना है, मतलब उनकी पोजीशन जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग रखनी है। तो जैसे बी जो है एंगल, वो एंगल क्यू के इक्वल है, ठीक है। तो इसीलिए जब आप सिमिलैरिटी लगाएंगे और फाइनली जो ये लिखेंगे दिस स्टेटमेंट, ठीक है, यहाँ पर अगर आप मान लीजिए गड़बड़ भी लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर आप दोनों ट्राइंगल को कंपेयर कर रहे हैं, राइट। ओवर हेयर यू आर जस्ट कंपेयरिंग बोथ द ट्राइंगल्स एंड इट डज नॉट मैटर हाउ यू राइट, राइट। यहाँ पर आप क्यू पी आर भी लिख सकते थे, पी आर क्यू भी लिख सकते थे, यहाँ पर ए सी भी लिख सकते थे, कुछ भी लिख सकते थे, लेकिन जब फाइनली व्हेन यू आर proving this that they are similar, so over here you need to
कीप इन माइंड दैट कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस शुड कम इन कॉरेस्पॉन्डिंग प्लेसेस, ठीक है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस जो हैं, जैसे कि ए का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कौन सा है, पी। तो ए बी सी लिख रहे हैं तो ए पहले आ रहा है, तो इसी तरह पी क्यू आर लिख रहे हैं तो पी पहले आना चाहिए, वहां आप क्यू पहले नहीं लिख सकते, राइट, वरना गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक छोटी सी बात जो है ध्यान रखने की है। तो यहाँ पर कौन सा सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लगा, यहाँ पर लगा ए, ठीक है, ए या फिर ए भी बोलते हैं क्योंकि थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली चलिए जल्दी से इसको हटा देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा जो फुर्ती से करने पड़ेंगे हमें सारे एक्सरसाइज, बिकॉज वी आर रनिंग अ बिट शॉर्ट ऑफ टाइम टुडे, ठीक। सो सिमिलरली दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, दूसरे वाले क्वेश्चन में आप देख लीजिए कि उनके अब साइड्स दे रखी हैं, तो आपको क्या करना है, उसके अंदर एस वाला जो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया है वो लगा करके देख लेंगे, क्योंकि तीनों साइड्स दे रखी हैं, तो आपको रेशियो चेक करना है, ठीक है। तो आप ये देखिए रेशियो जो ये क्वेश्चन और बता देते चलिए आपको एक बार, क्योंकि इसके अंदर जो है आपको कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी समझ में आ जाएंगी। तो ये देखिए ये है एक साइड, ये है दूसरी साइड। मैं बिल्कुल फिगर को वैसे ही बना रहा हूँ जैसा कि गिवन है, ठीक है, उसके अंदर कुछ चेंजेस अपने नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये है एक साइड, ये है दूसरी साइड और दिस इज द थर्ड साइड, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। अब इसके अंदर आपको कंपेयर करना है, नामकरण कर देते हैं इसका। तो दिस इज ए, दिस इज B and this is C, and this is B, this is Q and this is R, ठीक है। साइड्स कैसे दे रखी है, लेंथ दे रखी है इसकी 2 यूनिट्स, इसकी 2.5 यूनिट्स, इसकी 3 यूनिट्स, alright, and over here in PQR this is side PQ is 6 units, side PR is 5 units and साइड QR is 4 यूनिट्स, राइट। तो अभी हमें क्या करना है, इनके रेशियो कंपेयर करने हैं कि रेशियो इनके क्या इक्वल आ रहे हैं। तो फिर से देख लेते हैं, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो अभी आपको बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए जब आप स्टार्टिंग में, जब तक आपने उसको प्रूव नहीं किया है तो आप उनके नाम कैसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं BCA लिख सकता था, ABC लिख सकता था, CBA लिख सकता था, और साथ ही दूसरा जो है वो PQR, QRP, RPQ कुछ भी लिख सकते थे। लेकिन जब आप सिमिलैरिटी प्रूव कर देंगे यूजिंग सम फैक्ट, सम क्राइटेरिया, तब आपको नाम जो है वो लिखना है एक्यूरेट। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स या कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस का ध्यान उस वक्त रखना है। चलिए तो अब बात करते हैं हम साइड AB, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए ध्यान से अगर आप देखेंगे तो AB अपॉन QR क्या वो इक्वल हो रहा है BC अपॉन PR के, देखिए ध्यान से, AB अपॉन, ये कैसे किया मैंने तो सिर्फ और सिर्फ उनकी वैल्यूज देखी, तो मैंने देखा एक साइड 2 है और उसका दूसरी साइड जो है वो डबल है 4, ठीक है। दूसरी साइड एक क्वांटिटी है जो कि इसकी डबल है 4, ठीक है। सिमिलरली फर्स्ट वाले ट्रायंगल में देखा तो एक साइड 2.5 है और दूसरे वाले ट्रायंगल में उसकी एक और दूसरी साइड जो है वो भी उसकी डबल है, ठीक है। तो मेरे को ऐसे रेशो मिल रहा है कि फर्स्ट वाले ट्रायंगल की जो साइड्स हैं उसकी डबल जो है दूसरे वाले ट्रायंगल की साइड्स हैं, राइट। तो ये मुझे इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी देखने पर मिल रही है। तो क्या मैं इससे ऐसे लिख सकता हूँ AB अपॉन QR। ध्यान रखिए बस यहाँ पर अब गड़बड़ नहीं करनी है, यहाँ पर गड़बड़ अक्सर हो जाती है। तो यहाँ पर आपको AB अपॉन PQ नहीं रखना है, AB अपॉन PQ नहीं रखना है। यहाँ पर आपको कॉरेस्पॉन्डिंग साइड रखनी है जिसका रेशियो जो है वो दूसरी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल आए, ठीक है। तो AB अपॉन QR वो क्या BC अपॉन PR के इक्वल है,
ठीक है। और ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आए तो RP लिखते हैं इसको, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा भाई, कोई बुरा तो नहीं मानेगा अगर PR लिखते हैं या RP लिखते हैं, बात तो एक ही है, ठीक है। और ये क्या इक्वल होगा, ये इक्वल होगा AC अपॉन QP के, बोलिए है कि नहीं। तो इसकी इनकी वैल्यूज़ भी देख लेते हैं अगर आपको कन्फ्यूजन लग रहा है तो 2/4 क्या इक्वल है 2.5/5 और 3/6 के, क्या ये वैल्यूज़ इक्वल हैं, ठीक है। देख लीजिए कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। तो AB की वैल्यू है 2, QR की वैल्यू है 4, तो AB/QR जो है वो हमने लिखा, इक्वल्स है वो इक्वल है किसके, BC/RP के। तो BC की वैल्यू है 2.5 और RP की वैल्यू है 5। सिमिलरली वो AC/QP के भी इक्वल है, तो देख लीजिए ध्यान से, तो ये क्या हो गया 1/2, इधर क्या हुआ 1/2 और इधर क्या हुआ 1/2, ठीक है। सिर्फ देखने पर क्वेश्चन जो है समझ में आ जाना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो 100 मार्क्स तभी आ पाएंगे, ठीक है, कि आपको क्वेश्चन देखा और उसकी अप्रोच दिमाग में स्ट्राइक कर गई, ठीक है। तो किसको कैसे सॉल्व करना है, तो अब आपको दिख गया ये कि ये क्योंकि साइड्स की बात हो रही है, साइड्स के रेशियो जो हैं वो तीनों साइड्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो जो हैं वो इक्वल हैं। सो बाय कौन सी हो गई SSS सिमिलैरिटी, ठीक है, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। ऑलराइट, दिस इज रियली टफ टू राइट लाइक दिस बट इट्स ओके, ऑलराइट, ठीक है, ऑलराइट। तो बाय SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन क्या हुआ, ट्राइंगल ABC सिमिलर होगा ट्राइंगल PQR के, नहीं, PQR नहीं लिख सकते आप, क्योंकि जब सिमिलैरिटी लिख रहे हैं तब आपको अब ध्यान रखना है कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या है। तो आपको ध्यान हो तो AB की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है QR और BC की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है RP। तो इसको ABC को कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल हो गया QRP, ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं QRP, ठीक है। ये इसका करेक्ट सोल्यूशन है। इसमें आप ऐसा नहीं लिख सकते कि PQR के सिमिलर है, क्योंकि PQR के सिमिलर अगर लिख दिया तो आपने AB और PQ को कॉरेस्पॉन्डिंग साइड बता दिया, ठीक है, BC और QR को कॉरेस्पॉन्डिंग साइड बता दिया, जबकि ऐसा नहीं है। AB की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है वो है QR और BC की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है RP, ठीक है। बस ये इस तरीके से सॉल्व करना है। आई बिलीव अब ये आपसे आराम से क्वेश्चंस इनको सॉल्व कर पाएंगे, तो बिल्कुल जुट जाइए, सारी एक्सरसाइज जो है उनको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक। चलिए आगे देखते हैं कुछ अलग तरीके का क्वेश्चन। उसी का एक सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, देखिए, इन दिस फिगर ट्राइंगल ODC सिमिलर टू ट्राइंगल OBA। भैया फिगर बना लेते हैं जल्दी से, फटाफट से, थोड़ा सा बड़ा फिगर बना लेते हैं ताकि हमको समझ में आ जाए। तो ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक, और उस पर ये दो तो ट्रांसवर्सल है, ये क्या ट्रांसवर्सल है, एक ये ट्रांसवर्सल ऐसे है और एक ये ट्रांसवर्सल ऐसे है, ठीक है, ऑलराइट। अब बात हो रही है क्या, पॉइंट OC, लेट मी जूम इट अ बिट, सॉरी, तो इस सेंटर का पॉइंट जो है ये है O, ये पॉइंट है D, ये पॉइंट है C,
और ये नीचे वाला दे रखा है ए और ये है बी। ये एंगल दे रखा है 70 और एक सेकेंड, ये ओ भी काम कर जाए यहाँ से, तो आप ओ इधर लिख देते हैं। और ये एंगल जो दे रखा है वो ये है 125 डिग्री। ठीक, अब ये तो डायग्राम दे रखी है, ये फिगर है। अब इसके अंदर और क्या चीज़ें दे रखी है, मेंशन कर रखी है। क्वेश्चन, बैक टू क्वेश्चन। तो ट्रायंगल ओडीसी, ये ओडीसी, ये ओडीसी सिमिलर है ओबीए के। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। ये गिवन है ट्रायंगल ओ डी सी, तो वहाँ शायद दिखेगा नहीं, यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ ट्रायंगल ओ डी सी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ओ बी ए के, ट्रायंगल ओ बी ए के। ठीक है, अब क्या बात हो रही है, अब क्या दे रखा है इसमें, इसमें दे रखा है एंगल BOC जो है 125 दे रखा है, ये हमने मेंशन कर दिया है। एंगल CDO 70 डिग्री दे रखा है, ये भी मेंशन कर दिया है। देखिए आपको क्वेश्चन में तो देखो आंसर, जब आप आंसर शीट में जब लिखेंगे तो मेंशन करेंगे। यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि एक तो स्पेस भी कम है, साथ में लिखने में बहुत बढ़िया मज़े वाली बात है, इसलिए। ठीक है, तो फाइंड एंगल DOC एंड एंगल DCO एंड एंगल OAB। हमको निकालना है एंगल DOC, ये पूछा है, एंगल DCO ये पूछा है, और एंगल OAB ये पूछा है। भैया ये तीनों चीज़ें निकालनी है, इंफॉर्मेशन जो दे रखा है वो गिवन हमने मेंशन कर दिया। ठीक है, तो एंगल DOC कौन सा वाला हो गया, एंगल DOC ये हो गया भैया, ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मार्क इस, ठीक है, और कौन सा है एंगल DCO, ये क्वेश्चन मार्क है, और क्या है एंगल OAB, दिस वन, राइट है। ऑलराइट, तो ये तीनों क्वेश्चन हमें बताने हैं, ये तीनों क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अप्रोच क्या होगी, देखिए, तो सबसे पहले हम जो गिवन है इन्फॉर्मेशन उससे हम क्या क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो आइए। तो एंगल ट्रायंगल ODC, ये वाला ट्रायंगल ODC ट्रायंगल OBA के सिमिलर है। तो इसका मतलब क्या क्या हो गया, इसका मतलब देखो ये एंगल जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा। तो एंगल D जो है, एंगल ODC जो है, ठीक है, क्या क्या इक्वल हो जाएंगे, देखो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे। तो आपको पता है सिमिलर ट्रायंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल रेशो में होती हैं। लेकिन हमें साइड से इस वक्त कोई मतलब नहीं है, क्योंकि साइड एक्चुअल में पूछ नहीं रहा। तो साइड वाला क्राइटेरिया लगा करके तो कोई फ़ायदा है नहीं, पर एंगल वाला क्या लगा सकते हैं क्या, बिल्कुल लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो एंगल है, क्या ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है इसका, ठीक है, एंगल OAB और एंगल OCD, एंगल OAB और एंगल OCD, क्या ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं जी, बताइए। बिल्कुल, तो इसका मतलब एंगल OAB और एंगल OCD तो बराबर होंगे। ठीक है, साथ में अगर आपको याद हो तो आपको पता है कि एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी एक करके कोई चीज़ हमने देखी थी, पढ़ी थी, जिसमें एक्सटीरियर एंगल जो होता है किसी भी ट्राइंगल का, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट टू एंगल्स। ठीक है, तो कोई भी, जैसे अब बात करें इसमें ट्राइंगल ODC में, तो ट्राइंगल ODC में एंगल COB या एंगल ये BOC, दिस वन 125 जो दे रखा है,
ये क्या इसके इक्वल होगा? एंगल ओ डी सी और प्लस एंगल ओ सी डी क्या, ठीक है, कौन सा? देखो, बाय एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल सम, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, ये ऐसा ही है प्रॉपर्टी, ठीक है। ये क्या है देखिए, तो ट्रायंगल ओ सी डी, ट्रायंगल ओ डी सी जो है इसका एक्सटीरियर एंगल है एंगल सी ओ बी। ध्यान से देखिए, आपको अगर इसको थोड़ा सा मैं घुमा करके बना दूं डायग्राम, ठीक है, तो ये हो गई ये साइड, एक यहाँ से ये साइड, ठीक है। अब इसमें मैं क्या मान रहा हूँ, जैसे बेस मैंने बनाया है, ये मैंने बेस बना दिया OD, ठीक है, और OD के ऊपर ये OC इस तरीके से बना दिया है, और ये इसकी साइड CD हो गई, ठीक है, और ये एक्सटेंड हो रहा है इधर, ठीक है। तो ये मान लीजिए ये है C, ये है D, ये है O और ये है B, ठीक है। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे मान सकते हैं? सिर्फ हमने कुछ नहीं किया है, उसी डायग्राम को थोड़ा रिजॉल्व कर लिया है, उस फिगर को थोड़ा सा रिजॉल्व कर लिया है, ठीक है। रिजॉल्व करने से क्या हो जाता है, चीज़ें ईजी हो जाती हैं समझने में, अंडरस्टैंडिंग आपकी जो है वो काफ़ी कन्वीनियंट हो जाएगा वो क्वेश्चन, अगर आप उसको रिजॉल्व कर लेंगे, उसको ईजियर पार्ट्स में, छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दे रखा है एंगल, ये जो है ये 70 डिग्री है, और ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो आपको पता है क्या, तो एंगल सी ओ बी, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सी ओ बी होगा किसके इक्वल? एंगल सी डी ओ प्लस एंगल ओ सी डी। तो एंगल सी ओ बी की वैल्यू रख दो 125 इज इक्वल टू एंगल सी डी ओ क्या है, पूछा गया है, राइट। तो पूछा गया है तो एंगल एंगल सी डी ओ तो दे रखा है, एंगल सी डी ओ दे रखा है 70 डिग्री, है ना। एंगल ओ सी डी पूछा गया है प्लस एंगल ओ सी डी। बोलिए, समझ में आ रहा है? ठीक है। हमने क्या किया है, हमने सिंपल एक प्रॉपर्टी जो कि हम पढ़ चुके हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी, जिसके अंदर पता है कि एक्सटीरियर एंगल का सम जो है इंटीरियर अपोजिट दो एंगल जो हैं उनके सम के इक्वल होता है। एक्सटीरियर एंगल जो है वो इंटीरियर अपोजिट दो एंगल जो है उनके सम के इक्वल होता है, और वही प्रॉपर्टी हमने यहाँ लगा दी, तो उससे निकल कर आ गया एंगल ओ सी डी कितना, वो है ये डी है, ठीक है। तो ये कितना आ गया 125 माइनस 70, तो ये आ जाएगा 55 डिग्री। ये कौन सा एंगल आ गया, ये, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम, अब ये हो गया है 55 डिग्री, ठीक है। या इसको यहाँ लिख देते हैं एंगल OCD, ये रहा। OCD लिख दो कि DCO लिख दो, एक ही बात है। ये हो गया है 55 डिग्री, ठीक। ये तो हमने एक प्रॉपर्टी लगाई, उससे निकाल लिया। अब हमें ये पता है एंगल OCD जो है वो एंगल OAB के इक्वल है, तो एंगल OCD, ठीक है। ऑल्सो अभी क्योंकि दूसरी प्रॉपर्टी लगेगी इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि दूसरा सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। ऑल्सो एंगल OCD इज इक्वल टू एंगल क्या होगा, OAB। क्यों होगा, क्यों होगा भाई, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ध्यान रखिए, आप पूरी वैल्यू लिखिए, पूरी टर्म्स लिखेंगे, ऑल्ट नहीं लिखेंगे या इंट नहीं लिखेंगे, आपको लिखना है पूरा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब
तो OCD और OAB क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इसका मतलब एंगल OAB क्या है, एंगल OAB भी 55 डिग्री है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो 55 डिग्री, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। हाँ, ये अरे मेरे को पता है बहुत इजी है ये, तो मतलब हमको इतना पेन चलाने की ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि नंबर चाहिए, मार्क्स मिलते हैं जब हम पेन चला करके और आंसर बताते हैं। मार्क्स हमें दिमाग में सॉल्व करने पे नहीं मिलते। पर हाँ, ये क्वेश्चन जो है ये वो ऐसा ही है कि आप दिमाग से मतलब बिना पेन के भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन एग्जाम में कैसे आए, एग्जाम में आएगा तो कैसे सॉल्व करना है वो आपको मेथोडोलॉजी बताई जा रही है, अप्रोच बताई जा रही है। अप्रोच तो मेरे को पता है, आपको ऑलरेडी पता ही है कि किस तरीके से आंसर निकालना है, पर उसको लिखना कैसे, कैसे एक्सप्रेस करना है वो आपको बताया जा रहा है, ठीक है। और एंगल DOC, एंगल DOC, अरे आपको पता है क्या कि एंगल DOC क्या होगा, देखो ये लीनियर पेयर है तो ये 125 है, तो ये क्या हो गया 180 माइनस 125, ठीक है। तो ये एंगल ऑल्सो देखो लीनियर पेयर है ना, तो एंगल DOC प्लस एंगल COB, अरे ये क्या होगा 180, क्यों होगा, बिकॉज लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, तो एंगल DOC की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो एंगल DOC प्लस एंगल COB की वैल्यू क्या है, एंगल COB की वैल्यू निकालनी, एंगल COB इज 125 डिग्री इक्वल्स टू 180। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एंगल DOC इज इक्वल टू कितना आ गया 55 डिग्री, राइट। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। आई बिलीव आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है 2 नंबर का, 3 नंबर का, तो आपको लिखना पड़ेगा, इतना तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक। चलिए जल्दी से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो बात करिए डायगोनल ACN BD और फिर ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम कैसा होता है, ट्रेपेजियम होता है जैसा बाल्टी जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसकी क्या होगी, 2 साइड्स जो है, जैसा आपको डायग्राम में बताते हैं, ट्रेपेजियम इस तरीके से होता है, इसकी 2 साइड्स जो हैं वो पैरेलल होंगी और इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है। तो क्वाड्रिलेटरल होता है, लेकिन क्वाड्रिलेटरल किस तरीके का होता है, जिसमें 2 साइड्स पैरेलल होती हैं बस, ठीक है, और बाकी जो 2 साइड्स हैं वो पैरेलल नहीं हो सकती, ठीक है। तो वो पैरेलल हो जाएंगी तो बन जाता है पैरेललोग्राम, ठीक है, वो ट्रेपेजियम नहीं रहेगा। तो ट्रेपेजियम का कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अब वो बात करें डायगोनल्स AC एंड BD, डायगोनल AC एंड BD है, तो ये नाम रख देते हैं इसका A B C और D। तो हमने नाम इसी तरीके से रखा है ताकि डायगोनल AC बन जाए और डायगोनल BD बन जाए। और फिर ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल टू DC, AB जो है वो DC के पैरेलल है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। और क्या पॉइंट दे रखा है, इस पॉइंट का नाम दे रखा है O। इंटरसेक्ट ईच अदर मतलब मिलते हैं एक दूसरे से AC और BD किस पॉइंट पर, O पर। Using a similarity criteria for 2 triangles, show that OA upon OC equal to OB upon OD. To prove what do we need to prove? OA upon OC equals OB upon OD, ठीक है। तो OA अपॉन OB इज इक्वल टू OC अपॉन OD, ठीक है।
और क्या क्या दे रखा है, देखिए गिवन जो है वो ये रहा, ये जो डायग्राम भी हमने सही बनाया। अब देखते हैं क्या क्या इसके अंदर कर सकते हैं। तो ये देखिए, अब आपको कौन कौन से ट्राइंगल लेने हैं वो लिख लेते हैं। तो ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल सी ओ डी। ठीक, तो हमको कौन कौन सा ट्राइंगल लिया, एक तो ये ए ओ बी और एक लिया है सी ओ डी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या हमको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, देखिए कि ये जो एंगल्स हैं, कि एंगल डी ओ सी जो है वो एंगल बी ए ओ के इक्वल होगा। ठीक है, तो एंगल के नाम रख लेते हैं हम, इसका नाम रख लेते हैं 1, इस एंगल का नाम रख लेते हैं 2, इस एंगल का नाम रख लेते हैं 3 और इस एंगल का नाम रख लेते हैं 4। ठीक है, तो अब बात हो रही है एंगल 1 क्या एंगल 3 के इक्वल होगा, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3। क्यों क्यों होगा भाई, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, और बताइए, तो एंगल 4 एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के इक्वल होगा। क्यों क्यों भाई, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, और भाई अगर इसका भी देखें तो एंगल सी ओ डी जो है वो एंगल ए ओ बी के इक्वल होगा। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अगर ये भी एंगल लेते अगर हम, ठीक है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता। ठीक है, क्यों होता, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, कोई भी दो लाइन जब इंटरसेक्ट करती हैं तो 4 एंगल्स बनाती हैं जिसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो क्या हम इनको सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, तो यस, तो हमने सिमिलर प्रूव कर देते हैं। तो ये हो जाएगा ट्राइंगल ए ओ बी। अब आपको एंगल जो है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के हिसाब से आपको दूसरे वाले को अरेंज करना है। ठीक है, तो एंगल ए ओ, अपने ट्राइंगल ए ओ बी लिखा है तो ध्यान से देखिए, एंगल ए जो है वो किसके इक्वल है, एंगल ए जो है वो एंगल सी के इक्वल है, और ओ जो है वो एंगल ओ के इक्वल है, और जो तीसरी साइड बच गई, तीसरा वर्टेक्स बच गया, उससे आप एज इट इज लिख दीजिए। बहुत ईजी है। तो ये दोनों सिमिलर प्रूव हो गए, तो उससे आपको निकल कर आ जाएगा ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल्स ओ बी अपॉन ओ डी। क्या यही प्रूव करना था, क्या यही प्रूव करना था, तो यस, हैंस प्रूव। ठीक।